अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली फिट होंगे आप। तो जी क्लास, वेलकम जी न्यू क्लास। आज हम 10th क्लास में चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 10। टाइटल है उसका गैसेस एक्सचेंज। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम? गैसेस एक्सचेंज। मेन गैसेस एक्सचेंज है हमारे पास टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट, टेकिंग इन oxygen and giving out carbon dioxide. So process by which you can intake oxygen and extake carbon dioxide is known as exchange of gases या gases exchange simply. तो बेसिकली आज के लेक्चर में जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं, आज जो हम लर्न करेंगे इस लेसन में, वो होगा एक तो इंट्रोडक्शन। एक तो हम इसमें डिस्कस करेंगे आज के लेसन में व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेकंड जो हम इसमें देखेंगे वो होगा सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में मेजर क्या डिफर है। एंड मेगा जो टॉपिक है आज का वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। तो आज हम गैसेस एक्सचेंज देखेंगे प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, हाउ यू कैन डिफाइन दिस। एक्चुअली दिस वन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग मीन एनी बायोकेमिकल रिएक्शन by which CH bonds are broken down। इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, हम अटैक करते हैं किस चीज़ पे? CH बॉन्ड पे, उसके केमिकल बॉन्ड पे। केमिकल बॉन्ड के होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डेवलप होते हैं। हम उसे ब्रेक आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। And these CH bonds are found in food, mean glucose. The fuel of our body is glucose. And when we used to break CH bond of food, then energy is released that is furtherly transformed in form of ATP, which is the mega currency unit of cells energy body or cells currency unit that can stored in chemical form bond energy. What is breathing? Breathing mean actually animals take air in their bodies to get oxygen from it and then remove air and to rid of carbon dioxide. Simply mean this process is easily can be observed in animals, that is absent in plant. तो एक्चुअली ये प्रोसेस होता है क्या कि हम फ्रेश एयर इन्वायरमेंट से इम्प्योर जो हमारी फ्रेश एयर है उससे प्योर्ड आउट करते हैं किसमें? अपनी बॉडी के अंदर, ताकि हम उससे ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकें। और जो हमारी इम्प्योर एयर होती है, जो कि कंटेमिनेटेड एयर होता है, उसे हम रिमूव करते हैं ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिड ऑफ कर सकें। सेलुलर रेस्पिरेशन लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें CH बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जाता है बाय रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल। देयर इज अ मेजर डिफर बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। Breathing is actually just a physical or chemical process. Physical or mechanical, sorry मैंने इसे chemical बोल दिया। Mechanical mean that's just एक physical process है कि आप air को intake करें या extake करें। There is no involvement of chemical bonding or there is no involvement of chemical reaction. So this is just a physical or mechanical reaction. But if you talk about cellular respiration, there is a complete oxidation. So this is a biochemical in nature or it is a mechanical or chemical kind of reaction.
third major difference between cellular respiration and breathing is actually breathing is a external process that occur at organism level, but that is a internal process that can occur at cellular level, as name represent it easily. One thing more, there is no involvement or redox reaction in case of breathing, but there is a great involvement of redox reaction in cellular respiration. And the last one, that is ATP production. There is no ATP production in case of breathing, but there is ATP production in case of cellular respiration. So these were major 5 differs. I can repeat it. Firstly, we talk about define. Secondly, we talk about nature of biochemical reaction. Thirdly, we talk about redox reaction involvement. Fourthly, we talk about types. And fifthly, we talk about क्या कहेंगे, एक्सक्यूज मी जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। एक्चुअली प्लांट के बारे में अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्लांट हैव नो ऑर्गन। प्लांट में एनिमल्स की तरह कोई वेल डिफाइंड ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, ना कोई सिस्टम मौजूद होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन्वायरमेंट। वहाँ पे प्लांट के इंडिविजुअली हर सेल जो होता है वो खुद से रिस्पॉन्सिबल होता है वो कि किस तरीके से वो अपना गैसेस का एक्सचेंज करेगा। तो प्लांट को हमने डिवाइड किया मेजर 3 ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यंग प्लांट में कि किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है, और सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे मैच्योर प्लांट के बारे में जिसे हम वुडी प्लांट भी कहते हैं, और थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एक्वेटिक प्लांट के बारे में जिसे हम मतलब हाइड्रोफाइट भी कहते हैं। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि प्लांट में कोई ऑर्गन या वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं होता, लेकिन ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो वेल डेवलप्ड होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। लाइक इफ वी टॉक अबाउट यंग प्लांट which are non-woody plant, which are herbaceous plant, actually they perform gaseous exchange with the help of stomata. Basic organ-like structure which is responsible for the gaseous exchange in young plant, that is stomata. And what is stomata? This is the microscopic pore. This is the microscopic pore present in epidermis of जी। तो क्लास यंग प्लांट में मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा क्या होता है? एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक पोर होता है जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो हमारे पास लीफ होता है उसकी जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पोर्स पाए जाते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन यंग प्लांट। होपफुली अंडरस्टैंड किया आपने। तो नेक्स्ट है मैच्योर प्लांट कैटेगरी। दे कैन परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ लेंटिसल। एंड व्हाट इज लेंटिसल? एक्चुअली लेंटिसल इज अ डिसकंटिन्यूअस। लेंटिसल क्या है हमारे पास? डिसकंटिन्यूअस पोर्शन। क्या है ये हमारे पास? डिसकंटिन्यूअस पोर which is a special opening in layer of bark। ये डिसकंटिन्यूअस पोर है जो कि स्पेशल ओपनिंग के तौर पे एक्ट कर रहे हैं मैच्योर प्लांट वुडी प्लांट के अंदर और हेल्प आउट कर रहे हैं गैसेस एक्सचेंज में। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एक्वेटिक प्लांट। एक्चुअली दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म टू एक्सचेंज गैसेस बाय रूट एयर। रूट एयर है हमारे पास एपिडर्मल एक्सटेंशन। क्या है ये हमारे पास? एपिडर्मल cells
extension, which help in exchange of gases. Excuse me. नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट सेल में, लीफ सेल में 2 प्रॉब्लम्स हैं. मीन इफ यू टॉक अबाउट डे टाइम, फोटोसिंथेसिस वर्ड इंडिकेट कर रहा है. फोटो मीन लाइट मीन सोलर एनर्जी that is present only during the daytime, so the process of photosynthesis can be proceed during the daytime. तो डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसे यूटिलाइज कहाँ किया जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में. उस ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो जाती है कहाँ पे? सेलुलर रेस्पिरेशन में. और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसे यूटिलाइज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में. तो इस तरीके से ये सोल्यूशन सॉर्ट हो जाता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट टाइम, व्हेन देयर इज नो सनलाइट, सो देयर इज नो फोटोसिंथेसिस. इन द एब्सेंस ऑफ सोलर एनर्जी देयर इज नो फोटोसिंथेसिस. लाइक जैसे डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि दैट कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोलाइट या सोलर लाइट. तो इन दिस प्रोसेस there is no photosynthesis, but the process of respiration is occurring all the time, either we talk about daytime or night time. So the carbon dioxide which is produced during the night time becomes so surplus, we need it to remove it by diffusion. And as there is no photosynthesis, so there is no synthesis of oxygen, and then how plant can manage? As we know, while process of respiration, there is great deal of oxygen is applied for the breakage of CH bond. Without respiration, a plant or any living kind organism doesn't survive. So from where we get oxygen while night process for cellular respiration, that is absorbed from environment. From where does it oxygen come into plant body while night process? This come from the environment. That environment which receive oxygen, a great deal of oxygen, while daytime get oxygen, so while the night process, that can be little bit, just 10% is back to plant body by process to diffusion. तो जी क्लास, ये थोड़ा सा आज का इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने डिस्कस किया कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, गैसेस एक्सचेंज क्या होते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग की जो टर्म्स हैं इनमें क्या मेजर डिफर है. इसके अलावा हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट डिस्कस किया जिसमें 3 कैटेगरी फॉल कर रही थी. लाइक उसमें आपने सबसे पहले जनरली आपने यंग प्लांट के बारे में बात किया जिसमें बेसिकली 90% जो गैसेस एक्सचेंज था स्टोमेटा के ज़रिए हो रहा था, और जस्ट 1 लिटिल बिट जो है 10% वो क्यूटिकल के ज़रिए हो रहा था, जो कि एक वैक्सी लेयर होती है जो मौजूद होती है लीफ के अपर मोस्ट लेयर पे. इसके अलावा आपने वुडी प्लांट या मैच्योर प्लांट के बारे में डिस्कशन की जहाँ पे लेंटिसल एक मेजर ऑर्गन के तौर पे एक्ट कर रहा था फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि एक डिसकॉन्टीन्यूस और स्पेशल ओपनिंग थी जो कि इसके स्टेम के बार्क में मौजूद था. उसके बाद हमने डिस्कस किया एक्वाटिक प्लांट किस तरीके से ऑक्सीजन ले रहे हैं. तो एक्चुअली ये ले रहे हैं जो सॉइल सोल्यूशन के अंदर, जो एक्वाटिक के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन मौजूद होती है ये उससे यूटिलाइज कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर.
तो तमाम प्लांट में हमने सर्वाइवल देखा और लीफ सेल के अंदर 2 प्रॉब्लम्स भी देखी कि आपने नाइट टाइम के अंदर एब्सेंस हो जाता है ऑक्सीजन का, सो वो इन्वायरमेंट से उसे रिटेन करता है अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेसिंग के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ के लिए। अगर कहीं कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।